ओके सो द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 22 इसमें हम तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। उसमें वो आपसे पूछता है डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। सेकंड में वो पूछता है कि अ सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन इज कॉल्ड डैश, दैट इज म्यूटेशन, एक अचानक तब्दीली। तीसरा सवाल वो आपसे पूछता है कि डैश इज द चेंज ऑफ एन इवेंट टू अकर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। फोर्थ वन में अ क्रॉस अमंग मोनोहाइब्रिड्स इज अ डैश क्रॉस, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड्स यानी सिंगल ट्रेट्स जो है उसके हम जब जिक्र करते हैं। पांचवें में आपसे वो पूछ रहा है कि एन इंडिविजुअल विद अ होमोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड डैश, दैट इज होमोजाइगोट। ऑलराइट, सिक्स्थ वन इज कि डिफरेंट alleles of a gene that are both expressed in a heterozygote are called dash। जब दो आपके पास डिफरेंट एलील्स हैं वो लगातार अपने आप को एक्सप्रेस करवा रही हैं हेट्रो, उसको हम कहेंगे दैट इज कोडोमिनेंस। सेवेंथ वन इज when a heterozygote exceeds the phenotypic expression of both the homozygous, the phenotype is called as overdominance। ये गाइस आप लोगों ने इसका टॉपिक जो है वो लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आठवें में तो आपसे पूछता है कि व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट्स टू और मोर ट्रेट्स द फिनोमेना इज कॉल्ड एज लियोट्रॉपी। ओके, नाउ नाइन्थ वन इज a gene with multiple phenotypic effect is called as dash gene, that is leutropic gene। Tenth one is the phenomena of staying together of all genes of a chromosome is called as gene linkage। 11th one is dash minimizes the chances of genetic recombination, linkage। Dash is an exchange of segments between non-sister chromatids of homologous chromosome during meiosis, it's crossing over। इनमें से कई चीज़ें कई चैप्टर्स में लगातार रिपीट होती हैं, आप लोगों को याद होनी चाहिए। 13 में आपसे पूछता है कि all chromosomes other than sex chromosomes are called as dash, they are autosomes। The 14th one is okay, dash is the maleness determining gene in man, that is SRY gene, and it is present on Y chromosome। Next one is type dash of diabetes mellitus is non-insulin dependent। टाइप 2 जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड डैश इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। ओके गाइस, सो अब आगे हम लोगों के पास हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले जो है वो पूछेगा कि encircle the correct answer for the multiple choices। First one is when a single gene has multiple phenotypic effects, the phenomena is called as codominance, epistasis, leiotropy, or sex linkage, that is C। First one का answer is C, leiotropy। What happens when both alleles of gene pair independently express in a heterozygote? Dominance, incomplete dominance, overdominance, या codominance? Answer is fourth one। 2 का है D। Third one is a heterozygote offspring quantitatively exceeds the phenotypic expression of both the homozygote parent due to dominance, overdominance, incomplete dominance, या codominance, that is overdominance, C। Fourth one is how many gene pair contribute to the wheat grain color? 3 genes, answer is C। Fifth one, who for the first time found white-eyed mutant in Drosophila? That was Bridges, B। Sixth one, which of the following traits is transmitted directly from an affected father to only his son? That is Y-linked, C। Seventh one, which phenomena reduces the chances of genetic recombination and variation among offspring? Linkage, crossing over, independent assortment, या dominance? That is linkage, A। Eighth one, which of the following trait is not sex-linked recessive? Hypophosphatemic rickets, TFM syndrome, color blindness, या hemophilia? That is C, hypophosphatemic rickets, C। Okay guys, so ninth one is which of the traits zigzags from maternal grandfather through a carrier daughter to a grandson? That is X-linked। X-linked मतलब B।
Okay, 10th is when a hemophilic carrier woman marries a normal man, who among her offspring may be affected? Half of her sons. Answer is D. 11th one, what is the risk of colorblind child in family when mother is colorblind but father is normal? That is 50%. Answer is C. 12th one, what is the risk of a colorblind child in a family when father is colorblind, mother is normal? Answer is 0%. A. Alright, now moving towards the true and false. ट्रू और फॉल्स जो है ये पेपर का हिस्सा नहीं होते, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। लेकिन इनमें से आपको कोई MCQs या कोई फिल इन द ब्लैंक, फिर फिल इन द ब्लैंक भी आपके पेपर का हिस्सा नहीं होती, इसीलिए इस तरह से आपके पास जो है बेसिकली इनमें से MCQs ही बन सकता है, ठीक है। लिहाजा आपने इसको उस हवाले से याद करना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है ताकि आपको सिर्फ पेपर के हवाले से नहीं वैसे भी ये चीज़ें समझ आए। सो हम लोग आते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। लेकिन ये जो MCQs हैं ये पेपर का हिस्सा है और इसमें से पेपर में आता भी है, सो दैट्स व्हाई आपने इनको लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से डिस्कस करना। फर्स्ट वन इज कहता है इन अ ग्रासहोपर द मेल हैज X0 एंड द फीमेल हैज XX टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे Y की जगह नॉट आना था, सो दिस इज रॉन्ग। 2 is P is normally a self-fertilizing plant. Yes. Third one, dihybrids are offspring of the parent who differ in one contrasting pair of trait. No. 2 होंगे तो। 4, X-linked traits pass direct from father to son. X-linked, no. Y-linked होंगे। 5th one, a person suffering from blue 1 monochromacy cannot see blue color. No. 6th one, in birds and moths, egg determines sex. Yes. 7th, a homozygote forms all gametes of the same type. Yes. 8th one, the alleles for a sex-limited trait is dominant in one sex but recessive in the other. Yes. That is the wrong answer. Pattern baldness is a sex-influenced trait. Yes. 10th one, carriers of hemophilia show no symptoms of the disease. Of course no. Alright guys, so these were the objective type. Now moving toward the short questions. First of all you have the differentiation. Now let us discuss about the differentiation. कहते हैं कि phenotype और genotype में जीन और allele में फ़र्क करें। अब आप लोगों को याद होगा फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या फ़र्क था। फिनोटाइप वाज द फिजिकल एक्सप्रेशन, जीन और एलील में फ़र्क आपको पता है कि आपके पास जो जीन है उसकी आगे जो 2 आपके पास जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनको एलील्स कहते हैं। इसी तरीके से होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस सेम एंड डिफरेंट। इसी तरीके से मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड कौन सा होता है जिसके अंदर हम लोग सिंगल ट्रेट को डिस्कस कर रहे हैं, डाईहाइब्रिड डबल ट्रेट। इस तरह ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, all other chromosome except sex chromosome और autosomes, dominance and epistasis में भी आप लोगों को पता है। इसी तरीके से हमारे पास आगे है ये epistasis जो है, ये दोबारा सुन लें कि epistasis हमारे पास जो है जब एक जीन की वजह से किसी दूसरी जीन का जो है वो एक्सप्रेशन या रुके या स्टॉप हो या डोमिनेंट हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब वो इन्फ्लुएंस करे दूसरी जीन को तो उसको हम लोग epistasis का नाम देते हैं। अलील और मल्टीपल अलील, X-linked trait and Y-linked trait, incomplete dominance and codominance। इसी तरीके से sex limited and sex influenced traits, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस जो लगातार हैं, डिसकंटिन्यूस जो कि जब भी होंगी तो स्ट्राइकिंगली होंगी, जबकि जो कंटिन्यूस हैं वो थोड़ी सी और लगातार होती रहती हैं। डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट। ऑलराइट गाइस, सो अब इस तरह हमारे पास है जीन पूल क्या होता है। मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आपके पास किसी पॉपुलेशन की तमाम जेनेटिक मेकअप को इकट्ठा करके हम लोग जीन पूल का नाम दे सकते हैं। पी अल्लाह की चॉइस, क्यों? इसलिए कि आप जो है वो 7 मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके अंदर पढ़ सकते हैं और इसी तरह से ये हर्माफ्रोडाइट है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, दैट्स व्हाई इसकी चॉइस जो है दैट वाज एन एक्सीलेंट चॉइस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? व्हाई मेंडल डिवाइस दिस क्रॉस? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब आप किसी डोमिनेंट या रिसेसिव एलील को फाइंड आउट करने के लिए 2 ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं। इसमें फीलियल 1 फीलियल 2 जनरेशन जो है वो आ सकती हैं। ऑलराइट, मेंडल ने क्यों करवाए थे? ताकि वो आगे अपनी डोमिनेंट रिसेसिव एलील के बारे में अपनी थ्योरीज को जो है वो आइडेंटिफाई करवा सके, अपनी हाइपोथेसिस को। इससे ना व्हाट वुड हैपन इफ अलील्स ऑफ अ पेयर डू नॉट सेग्रीगेट एट मियोसिस? अगर मियोसिस के दौरान वो सेग्रीगेट नहीं होंगे तो आपको पता है क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मसला होगा। हाउ वुड इट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ अ गमीट? गमीट जो है उसको अब ज़ाहिर है एक एलील मिलनी है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो कंटेमिनेंसी आ जाएगी। दैट्स वाई आप लोग अच्छी तरह से जेनेटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते और अगली जनरेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी अकर हो सकता है। इसी तरीके से द अलील डू नॉट व्हाई हैज़ ईच गमीट इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग वन ऑफ द अदर एलील ऑफ अ पेयर?
इसलिए क्योंकि जब मियोसिस होगी तो जाहिर है दोनों में आधे आधे एलील्स आएंगे, सो दैट्स वाई दोनों के पास आधे एलील्स आने के चांसेस होते हैं। डज द डोमिनेंट एलील मॉडिफाई द डिटर्मिनेटिव नेचर ऑफ इट्स रिसेसिव पार्टनर, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप डू दे हैव? आपके पास जो डोमिनेंट एलील है वो वाकई डिटरमिन करती है कि आपके आने वाले जो नए जो जनरेशन है उसके अंदर जो है वो करेक्टर कौन सा होगा, और आपके पास ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपका जो करेक्टर डोमिनेंट है वो वहाँ पे शो अप हो। और डोमिनेंट करेक्टर भी तब शो अप होता है जबकि वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, और अगर वो रिसेसिव होगा तो फिर 50% चांसेस हो जाते हैं कि रिसेसिव भी वहाँ पे आ जाए। खैर इसी तरह से व्हिच टाइप ऑफ ट्रेट्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंट, कौन से जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं? जाहिर है जो कि जेनेटिक डिपेंडेंट ट्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे उनकी जो अंदर चांसेस होते हैं कि वो असॉर्ट हो जाएं इंडिपेंडेंटली, कोई एक ट्रेट दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। व्हाई डज द ब्लड ग्रुप ऑफ फिनोटाइप ऑफ पर्सन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ? जाहिर है एक आदमी जो है उसका ब्लड जो ग्रुप है वो उसका एंटीजन डिटरमिन कर रहा है जो उसके जीन्स के अंदर है, तो जेनेटिक मेकअप तो तब्दील नहीं ना हो सकता, सो दैट्स वाई वो सेम ही रहेगा। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है? दैट्स ओ ग्रुप, क्योंकि उसके ऊपर कोई जो है वो आपके पास एंटीजन है नहीं, लिहाजा वो कहीं पे चला जाए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनती। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द बेबी अगेंस्ट RH इनकम्पैटिबिलिटी? हम लोग उसको एंटी जो है ब्लड सीरम जो इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को, वो इससे बचाते हैं। टाइप ऑफ जीन्स डू नॉट ओबे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो वाले जीन्स जो आपके पास हॉपिंग जीन्स या वो वाले जीन्स जो कि अल्टीमेटली अपने आप को एक्सप्रेस करवाने के चक्कर में हो और वो मेंडल के लॉ को ओबे ना करें। हाउ कैन लिंक्ड जीन्स बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर? लिंक्ड जीन्स को एक दूसरे से जुदा कैसे किया जा सकता है? जाहिर है ये या तो म्यूटेशन के जरिए होगा, या ये जब आपके लोगों के आगे डिवीजन होगी म्योटिक उसके अंदर होंगे ये अलग एक दूसरे से, और अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये रिकम्बिनेशन के चांसेस को खत्म कर देंगे। व्हाट इज मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस? मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस जो है मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे हो किसी एक चीज़ को, तो उसको मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं। इस तरह ब्लड ग्रुप ब्लड प्रेशर वगैरह इस तरह की जो डिजीजेज वगैरह हैं वो सारी भी मल्टीफैक्टोरियल हैं। व्हाट इज MODY? मैच्योर ऑनसेट ऑफ डायबिटीज यंग्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। कैन अ चाइल्ड हैव मोर इंटेलिजेंस IQ स्कोर देन हिज पेरेंट्स? या ऑफ कोर्स ही कैन, बिकॉज जब रिकम्बिनेशन होगा तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि यहाँ पे डिफरेंट जो हैं वो करेक्टर्स डिफरेंट हो जाएं। सो एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? अब तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने डोमिनेंस जब रिलेशनशिप पढ़ा है उसके अंदर आप लोगों ने हमारा ये लेक्चर आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसको आप लोगों ने डिटेल में लिखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। डिफाइन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक्सप्लेन करें। लेक्चर इज अवेलेबल। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेक्चर इज अवेलेबल। अलग अलग दोनों के हम लोगों ने लेक्चर आप लोगों की सहूलत के लिए दिए हुए हैं, वो दोनों आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसी है, कैसे होती है, कैसे निकाली जाती है, डिफाइन करें इसको। आपको पता है चांसेस टू अकर, और इसकी जो 9:3:1 9:3:1 कैसे निकालेंगे? आप लोगों को याद होगा F1 क्रॉस करवाना है, F2 क्रॉस करवाना है, गिवन है लेक्चर के अंदर। इसी तरीके से जो आपके पास है कोडोमिनेंस, वो कैसे होगी? कोडोमिनेंस आप लोगों ने बतानी है, उसमें ब्लड ग्रुप सिस्टम बताना है आपने, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसके बाद हमने RH फैक्टर को इसके अंदर आप थोड़ा सा टच दे सकते हैं, इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। मल्टीपल एलील्स क्या होती हैं? मल्टीपल एलीलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने बताना है, मल्टीपल एलील्स का आपको पता है, ठीक है। सो इसी तरीके से हम लोगों ने आगे देखना है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, आप लोगों ने हमने लेक्चर दिया हुआ है, आप लोग उसको नोट कीजिएगा और आपने इसको डिटेल में यहाँ पे लिखना है। एपिस्टेसिस, एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन विद एन एग्जांपल। एपिस्टेसिस क्या होती है? आपको पता है कि एक जीन का किसी दूसरे पे इन्फ्लुएंस, उससे कैसे ट्रेड्स जो है वो कंट्रोल होती हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, छोटा सा है, इतना बड़ा आर्टिकल नहीं है। इसी तरीके से व्हाट इज अ लियोट्रोपिक जीन, और डिस्कस लियोट्रोपी विद एग्जांपल्स। लियोट्रोपिक कौन सी जीन्स होती हैं? आपको पता है कि जो एक जीन एक सारा ट्रेड को कंट्रोल कर रही होती है, तो इनका क्या इफेक्ट होता है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेक्चर गिवन है। व्हाट आर पॉलीजीन्स, एक्सप्लेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लेक्चर इज गिवन। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, डिफाइन रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? आपको पता है क्याज मेटा के पॉइंट्स पे ड्यूरिंग मियोसिस जब सेगमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं तब हम उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या इसके इफेक्ट्स हैं? लेक्चर इज गिवन। आगे हमारे पास है कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने लेक्चर गिवन है कि पेपर के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने पेपर दिए थे तब ये सवाल आया था। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपेयर करें सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला और ह्यूमंस की। लेक्चर इज गिवन, वेरी स्मॉल आर्टिकल बट इज इंपॉर्टेंट। डिफाइन जीन पूल, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जीन पूल इन सेम पॉपुलेशन। Lecture is given, you can discuss it. What is the sex linkage? Explain Thomas and Morgan study of sex linkage in Drosophila. Sex linkage क्या होता है? हम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लेक्चर इस पे दिया हुआ है, उसको आप लोग डिस्कस करें। Compare the pattern of inheritance of an X-linked dominant और X-linked recessive। इसमें हम लोगों ने हीमोफीलिया, इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस, इसी तरह हम लोगों ने X और Y लिंक जो ट्रेट्स हैं सारे डिस्कस किए हैं, आप लोग लेक्चर को डिस्कस करें। Explain diabetes mellitus and its genetic basis। Diabetes mellitus का पूरा लेक्चर है, उसको आप लोग डिस्कस करें, उसके दोनों टाइप्स वगैरह को आपने एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Discuss
द जेनेटिक कलर ऑफ ब्लाइंडनेस, डिस्कस द जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ये एक्स लिंक वाई लिंक, ये बेसिकली ऊपर वाले एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा है, इसको आप लोग अलग से भी तैयार कर सकते हैं। दिस वाज द एक्सरसाइज। यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस होल चैप्टर, यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।